We tried everything what we can do, but they just want something more condition and more size. Number 252, Shay! ये एक फुल टाइम ढाबा चलाते हैं, ठीक है? फुल टाइम ढाबा चलाते हैं। Okay. 4:30 बजे से 3:30 बजे तक 4 बजे तक ढाबा क्लोज करके फिर आते हैं ट्रेनिंग पे। एज 17 साल है और मेरा नाम है ऋषभ मुखर्जी। एज अ फर्स्ट टाइमर वो स्माइल स्टेज पे लाना है शिवरिंग। पहली बार स्टेज पे चढ़ रहे हो, कांप रहा था, थोड़ा सा हुआ, बट जब दिखा ना लाइट सामने है, सब प्रेजेंट करना है, तो लगा कि हाँ अब करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेंस फिटनेस मॉडल कैटेगरी का ओवरऑल कवरेज। और गाइस ये कैटेगरी वन ऑफ द फेवरेट है मेरी, क्योंकि क्लासिक फिजिक जैसी है ये कैटेगरी, बट इसमें बस थोड़ा मसल मास कम रहता है एथलीट्स का, और कंडीशनिंग बहुत ही लाजवाब लाते हैं एथलीट्स। बाकी पोजिंग बहुत ही बढ़िया रहती है इस कैटेगरी की, तो ये कैटेगरी ज़रूर मिस मत करना, ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ओपन क्लास 1 के सिल्वर मेडल विनर से। तो दोस्तों यहाँ पे हम मिल चुके हैं कोच तरुण से, और यहाँ पे आपका नाम बताइए पहले। मुस्तफ़ा। ओके, इनको ऑनलाइन हम लोग यस ऑनलाइन देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्या कंडीशन लेके आए हैं। ओके, तो कैसा लगा मतलब आज का शो? So very good experience, and whatever we can do, we did our best. And my coach is, you know that kingmaker he is. So we tried everything what we can do, but they just want something more condition and more size. So and we'll take this feedback as a positive and we'll work on it. So we'll come back. प्लेसिंग कौन सा आया? So we got second place this time, and we'll try to improve this the next show, and we'll come back strong. Show your physique. Men's fitness model. So this was the first time you competed? So this is the second show. Last we did in Goa 2023. Okay. And that was the first time. This time we added some more muscle mass. So that time what was your placing? That time I got a third place in men's physique, but I did not done that fitness model that time. So fitness model this time I did first, and we did novice and 23 and open. We got second place. So how was the experience? Yeah, it's amazing actually. Whatever we did, we enjoy a lot, and I feel the stage. It's a very good experience for me. And we'll try to improve this. It's not end yet. So It's not end until we got that overall. we got the overall, yes. Goa, you competed in men's physique, Yeah. and now you come 2023 actually. yes, 2023. 2023. 1.5 years since he's competed. 1.5 years. 18 months you can say. 18 months, yes. So after that you competed in fitness model. Yeah. So why you thought that you had to change your The category? thing is that we have a complete symmetry of a fitness model, Okay. and we got that conditioning for that only. Okay. So if you see that men's physique, they need the more round muscle and bigger little bit size and conditioning. But in fitness model, the previous criteria when that we saw that in Goa show and that recent shows, they were looking for the lean and aesthetic models. Yes, yes. They are more Right now, conditioned. today also I saw that Exactly. Those guys are black little bit guys, bigger. We can say that those guys are switching from the classic to the fitness model this time. model, yes, yes. Because we can say that we got the top-notch conditioning. We bring it out like best what we can. But the guys who won, they are bigger. So how was the preparation, and what do you want to say about But this? it was just after, firstly, like he's a great student because the amount of shit I've given him, like most people can't handle. So he got here because he was able to take feedback and apply it, and that's why he's here. Because he's a really, really good student. You know? It's not an easy stage to go there. He's only 22. The first time he competed was in Goa 2023 ICM. Okay, so we did this prep. We brought him down like 6-7 kilos in the last 8 weeks or so, and got him to get more and more condition over time. But of course, it is always going to be in fitness model. It's always going to be the biggest of the smallest guys. And that's what I keep saying. Wow, what changes you had to make while switching from men's physique to? It's not a switch from men's physique, per se. It was just an attempt at men's physique. That's pretty much it. So it's not like he's switching from men's physique. That was an He's going to compete in men's physique. Yeah, He's yeah. also in novice, just as an experience. He's only 22. But He- what do you think? His physique is suitable for which category? He's men's fitness to begin with. He needs to keep on adding size of the year. See, he was 57 on stage even in 2023 in Goa, but he's added 5 kgs of muscle
pure skeletal muscle. That's why he's bigger, and he was big enough to get second place, right? So in open class, so that speaks a lot. Okay, so he narrowly missed. The other guy definitely was slightly bigger chest, fuller delts, shinier, better skin tone. So it was pretty better posing also. So he was definitely more aesthetically pleasing than Mustafa. So he needs to work on his posing a little bit more. Next goal is to add up more muscle. Absolutely, and fix the posing even more, right? So we only had about what since Mumbai. How many weeks has it been? Like 6 to 8 weeks, maybe? Yeah, 7-8 weeks. That's it. That was the prep. But of course, fortunately, he had a lot of muscle mass, so we just had to get him conditioned and teach him how to pose better. And he's done a great job. We did our best. The only thing that is missing is a little bit of size, and we can bring it on. You know, it's always feedback, right? So we learned something from the last show, and now we learned something from this show. It's all about learning and growing from there, right? So we'll apply. In fact, he got third place twice in novice and juniors men's fitness. We corrected a few things today, and then we corrected a few things, and then we went up to second place also, right? So in open class, which is a big deal, right? So that's what I'm talking about. You know, from novice to men's fitness, novice to juniors, and to open class where anyone can come. Open class, yes. Anyone come. He beat the bigger guys, the better guys also. He narrowly missed the first place because again he needs to be crispier, bigger, fuller, right? And slightly better posing. The other guy was better. I'd say by miles also, right? So that's good on him. Congrats. Congratulations. Thank Okay, you so much, man. and You're we'll doing make a great job. Promoting a natural bodybuilding. Thank you. It's a really honor to see you that. Yes, thank you. Thank you, sir. Well done. Boys and girls. All right, pull a turn to the right, facing the back. Gentlemen, quarter turn to the right. What an overall lineup. Incredible talent here, world class. Boys, quarter turn to the right, facing front. All right, time to see some 6-pack, 8-pack, shredded abs, boys, abdominals and strike. Great posing, boys. Spin you around once again, quarter turn to the right. Gentlemen, quarter turn to the right, facing the back. Gentlemen, quarter turn to the right. Quarter turn to the right, facing the front, please. Quarter turn to the right, facing the back. Quarter turn to the right. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I Quarter don't turn to take the right, shit. I facing the got front, no please, love boys. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
move so instinctive and so Gentlemen, passionate. abdominals Every word I move and so strike. descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You And relax, please, boys. All right, gentlemen in the front, because going to the back. Gentlemen in the back, coming to the front, please. Superior, get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel Guys, free from the coming in chains a little that bit closer lasted. together. Believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, All right, boys. got anyone's help. Quarter turn to the right. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Quarter turn to the right. I don't ever Facing the back, slow please. up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but Quarter turn to the right. something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking Quarter off. turn to the right, and I facing the gotta front, make please. it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Gentlemen, I got abdominals no love and for strike. fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Who coming forward? 30 coming forward. 194 coming forward, please. 195 coming forward, please. 340 coming forward, please. Two, 3-5 coming forward, please. All right, gentlemen, facing the front, please. Everyone facing the front. Gentlemen, quarter turn to the right. Quarter turn to the right, facing the back. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right, facing the front, please. Runner-up and the pro qualified athlete. Once again, boys, what a battle. You guys are phenomenal.
I would love to see you guys representing Team India internationally as well in the near future. All right, here we go, ladies and gentlemen. Your men's fitness model overall champion and new pro is number 252, Shane! And of course, Lennon, congratulations, that means you are pro qualified. Alright, next judge, Joey Cantlin, going up, awarding the pro card, a pro creator award as well. तो दोस्तों हम मिल चुके हैं मेंस फिटनेस मॉडल के प्रो कार्ड होल्डर से आज के। सो भैया आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम है शेख अल्लाह बकश। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आज compete किया आपने, ये फर्स्ट टाइम किया? नहीं, ये सेकंड टाइम कंप्लीट। सेकेंड टाइम, पहले कभी किया था? पहले गोवा में किया था। गोवा में किया था, तभी क्या प्लेसिंग आई थी? फर्स्ट प्लेसिंग आई थी। फर्स्ट प्लेसिंग, बस ये ओवरऑल नहीं जीत पाए थे? ओवरऑल में नहीं आया। यस, सो इस बार ओवरऑल भी जीत गए और प्रो कार्ड जीता है। ओके, सो मेंस फिटनेस के प्रो कार्ड विनर बन चुके हैं। तो कैसा लगा आज, मतलब मेरे को जीतने के बाद क्या था एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत एकदम जेन्युइन सी फील होता हूँ। और मतलब कब से वर्कआउट कर रहे हो? आपका एज क्या है? और मेरा 28 है एज है। Okay. मैं 8-9 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिजिकल सी जरा फाइनेंस प्रॉब्लम हो। इस बार आके हमारे कोच है। कोच है, यस। हाय ब्रो। हाय, हमारे coach आपका नाम? असलम। असलम। हाँ। ओके, सो कैसा, मतलब क्या आपने क्या सोच के इनको, मतलब क्या ट्रेनिंग दिया? देखो यार, इनका क्या है ना, पहले इनकी मैं स्टोरी बता देता हूँ। हाँ, वही। ट्रेनिंग का पार्ट अगर साइड में रखें, Yes. ये एक फुल टाइम ढाबा चलाते हैं, ठीक है? फुल टाइम ढाबा फुल चला? टाइम ढाबा चलाते हैं। Okay. इनका ट्रेनिंग का ऐसा है, सुबह ये 4 बजे 4:30 बजे उठ के तरकारी लाना, ये सब करके 4:30 बजे से 3:30 बजे तक, 4 बजे तक ढाबा क्लोज करके फिर आते हैं ट्रेनिंग पे। और उस टाइम पे 1.5 घंटा 2 घंटा कार्डियो चलता है, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग चलता है। Okay. उसके बाद स्टेप्स करके घर जाते हैं। इतने डेडिकेटेड है, मतलब इतना फिजिकल वर्क करते हैं एक दिन में? 100%। एक दिन में तो स्लीप कितना होता है आपका? स्लीप एक दिन होता नहीं रहता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे कोच है, बहुत फाइनेंशियली भी, हर हिसाब से भी बहुत सपोर्ट दे मेरे को। तो अभी मुझे ये बताइए कि मतलब अभी ये सब किया तो अभी कंपटीशन के लिए, मतलब अभी आपने जैसे बोला फाइनेंशियली थोड़ा ये होना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है, तो फाइनेंशियली मतलब कितना अपने को कंपटीशन में स्पेंड करना पड़ता है? देखो, कंपटीशन में स्पेंड करना पड़ता है। देखो, अभी अगर नॉर्मली कर रहे हैं, अभी हम एनहेंस तो थोड़ी कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं तो हमको चाहिए होता है। देखो, हमारे हिसाब से हमको एक्सपेंसेस होते हैं, चिकन और सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स, मतलब बेसिक सप्लीमेंट लेने के लिए भी हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। Yes. हमारे लिए तो ये एक्सपेंसिव ही Expensive है। है, मतलब घर चलाना, घर में देना, Yes. जो भी expenses घर है, देखना, बाकी का। वो एक्सपेंसेस निकाल के सप्लीमेंट के लिए अलग खर्चा। Yes. ये मतलब हमारे लिए रजिस्ट्रेशन का हो गया, इसका टैनिंग का हो गया, ये सब हमारे लिए खर्चा ही है। स्पेशली इनके लिए इनकी मेहनत रंग लाई है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जितना हार्डवर्क किया है वो अभी दिख रहा है। सो अभी वेरी हैप्पी, यार वेरी हैप्पी कि इनको मिल गया। Yes. ये डिजर्व करते थे, मैं पहले ही सोचा था इनको 100% मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट टाइम गोवा में compete किए थे, उस टाइम पे हमारी कंडीशनिंग भी इतनी नहीं थी, वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रेप था, बस 6 वीक्स का प्रेप किया था हमने। और अभी का प्रेप? हाँ, अभी का प्रेप हो गया हमारा 12 वीक्स का। 12 वीक्स 12 वीक का अच्छे से प्रेप किया, लॉन्ग टर्म थोड़ा अच्छे से Full ऑफ sacrifice. लेके पूरा लीन गेन करके फिर हमारा प्रेप चालू किया। मतलब एक अच्छी फिजिक मेंटेन करते हुए फिर प्रेप स्टार्ट किया। बराबर, मतलब इसलिए पहले हम- नॉर्मल प्रॉपर ट्रैक पे आके फिर ट्रैक पे आके प्रेप चालू किया, इसलिए इतना इजी से हो गया।
सो बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। और बाकी मतलब अभी फ्यूचर क्या प्लान्स रहेंगे? अभी हम ऑफ ले लेंगे 1 साल का या 2 साल का, हमको और थोड़ा काम करना है। सो क्या मतलब क्या आज का जो शो देखा रहेगा आपने? ओके, ये तो अपने आप को तो नहीं देख पाएंगे, बट आपने देखा तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया? मतलब अभी इस फिजिक को किस लेवल तक आगे लेके जाना है, मतलब देखो क्या करना है? अभी प्रो कार्ड लेने के लिए ये फिजिक Deserving सही थी। थी, डिजर्व थी। ओके, प्रो शो जीतने के लिए हमको और थोड़ा मसल मास गेन करना पड़ेगा। और इनके जितने भी प्रो एथलीट्स हैं, प्रो शोज विन करे हैं, उनसे हमने फीडबैक लिया कहाँ काम करना है, और हम जैसे भी फीडबैक लेंगे अगर वो फ्री हो जाएंगे Yes. क्या काम करना है, कहाँ काम करना है। अगर प्रो के हिसाब से हमने पूछा, इनकी बैक पे थोड़ा काम करना है। हम 100% काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम 100% आएंगे स्टेज प्रो पे? शो स्टेज पे, ओके, इंडिया में ही खेलेंगे। इंडिया में खेलोगे? और कितना टाइम लगेगा मतलब? मतलब 1 साल का तो ऑफ लेना ही ले। यस, मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करके ही आना है। हाँ। अगर आ रहे हैं तो 100% लेके भी जा रहे हैं। तो अभी आपने इनके बारे में बताया, ओके, आप बताओ कोच के बारे में क्या लगता है आपको? पूरा मेरा ही है मेरा। अब हर इसमें भी अब मेरे को फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पैसे पेमेंट नहीं देते। इसके बाद सप्लीमेंट करने से कुछ फाइनेंशियल क्या तो भी सपोर्ट करने के लिए अब रजिस्ट्रेशन फीस है ऐसी सो भी हर कुछ यही करके यही सब इमोशनली सपोर्ट फाइनेंशियली करके फुल फाइनेंशियली हर कुछ भी यही सपोर्ट देके पुश करके। तो आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? मैं इनसे सीनियर हूँ। मैं जब से छोटा था, इतना सा बच्चा था, खेल रहा था, उनको उस टाइम पे देख रहा था, ये तब बॉडी बिल्डिंग में जब से कर रहा अच्छा। हूँ। हाँ, लेकिन तो ये तो बहुत क्रेजी है मतलब। हाँ, तब इनका लेवल ऐसा था कि इतने बड़े भाई साहब, मैं जब 6th क्लास में या 5th क्लास में देखता था, और ये वो भैया को देखो, इतने बड़े भाई साहब है उनके। उस स्टेज से अभी मैं इनको ट्राइंग कर रहा हूँ। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं उधर ही रह के बाहर नहीं फिर सका, ये आगे पूरा ट्रेन लेके। तो अभी कैसा लगता है कि मतलब थोड़ा कोई आपके पीछे खड़ा है, मतलब आपको इतना गाइड कर रहा है, करना का तो कैसा लगता है? मतलब वो क्या फील ही चल रहा है उसके लिए जे आगे मैं इतना आगे आया सो और दिमाग का तो मतलब थोड़ा मेंटली हम थोड़ा कम सोचते हैं फिर मेंटली तो कैसा लगता है फिर? फैमिली से भी इतना मेहनत कर रहे हैं देख के, फैमिली भी नको बोल रहे कहीं कोई इतना मेहनत है, इतना खर्चा करके सब करके, लेकिन ये आके फुल हर दिन भी बोल के पुश करके इतने तो ले गए। ये भी कल compete कर रहे थे, थोड़े में मिस हो गया। कल कंप्लीट किया था आपने भी? हाँ। तो किसमें किया? मैं क्लासिक में और बॉडी बिल्डिंग में दोनों में ओवरऑल था। ओवरऑल के लिए आए थे? हाँ, दोनों में था। क्रेजी भाई। आपका भी मेरे को फोटो दिखाओ, वीडियो दिखा दो ना, ओके, मैं डाल दूंगा। दो दिन पोज मारती है, दोनों एक साथ पोस्ट करेंगे आज, हाँ, ओके? चलो आ जाओ। पोज मारती फोटो। क्रेजी। अरे यार, मैंने आपकी फिजिक भी देखा है। क्या आप ठीक है? Thank you, कब thank compete you. कर रहे हो आप? मैं गोवा में। गोवा में? Yes. पक्का हम आएंगे आपसे। Yes, आ जाओ। Yes. वो स्टूडेंट कोच crazy. Come on, front double bicep. Come on. Yes, nice. Side chest. Wow. Back. Come on. Oh, thickness है बहुत। Nice. Favorite pose एक बार कौन सा? या मेरा भी सेम फेवरेट है। Nice. Okay. So ये अवार्ड है इनका। So all the best. Yes. प्रो बनने से पहले प्रो क्रिएटर का अवार्ड ले लिया यार। लिया है। इससे Okay. खुशी की बात क्या हो सकती है? Yes. So all the best for you, both of you. Okay. और नेक्स्ट टाइम फाड़ के आना और पक्का यार आएंगे। दोस्तों हमारे साथ है एक टीनेज एथलीट। सो आपका पहले एज और नाम बताइए। अच्छा, इसमें हाँ मेरी एज 17 साल है और मेरा नाम है ऋषभ मुखर्जी। ओके।
तो भाई कब से ट्रेनिंग चालू की आपने? मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 10th के एंड में, लाइक बोर्ड्स खत्म हुए मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। तो अभी 2 साल हुआ है? हाँ 2 साल हो गए। 2 साल में ये फिजिक बनी? हाँ। ओके, और आज प्लेसिंग क्या आई है भाई की? हमारी आज फिटनेस मॉडल में फर्स्ट प्लेस आई है। फर्स्ट प्लेस एंड और एक मेडल था हमारी हाँ, क्लासिक फिजिक में कल फोर्थ Fourth प्लेस place आई आई थी, थी जो हमारी classic। सेकंड कैटेगरी। यस, तो कैसा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम कम्पीट किया? बहुत बढ़िया था, एकदम क्रेजी एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने मिला। ये देखने मिला कि हमें अगली बार स्टेज पे क्या लाना है, क्या वीकनेसेस है, क्या हमें और पुट ऑन करना है, तो बहुत कुछ सीखने मिला। ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत कुछ एक्सप्लोर भी करा, तो अच्छा लगा। सो अभी फर्स्ट टाइम कम्पीट किया राइट? 2 साल में ऐसी फिजिक बनाना और फिर स्टेज पे कम्पीट करना, मतलब थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब कोई लोग, अभी मेरा हो गया, मैं सोचता रहता हूँ कि कम्पीट करूँगा, बट आपने वो कर भी दिया। ओके, सो थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे बॉडी बिल्डिंग में आ गए? स्टार्टिंग में मैं एथलेटिक्स करता था 10th तक, नेशनल्स वगैरह गया। Okay. उसके बाद बहुत स्किनी था, तो उसके चक्कर में थोड़ी बुलिंग वगैरह होती थी, तो जिम स्टार्ट करने का वो पर्पस था कि भाई पतला हो, जिम स्टार्ट ये करना। बहुत लोगों का पर्पस रहता है। तो फिर उसके बाद जब जिम स्टार्ट कर दिया, इसी साल मैंने सोचा कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई अच्छी फिजिक है, अच्छी कंडीशन आ रही है, तो थोड़ा ट्राई कर। सर्च करा, कोच लिए जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, डाइट से लेके कोच कौन है आपके? नाटी क्रिश। नाटी क्रिश, हाँ, शाबारी सर। ओके। ओके, सो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं। अब वहाँ से लेके मेरे प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे, मेरे बोर्ड्स भी आए, फिर उसमें जो मेंटल प्रेशर संभालना पड़ा वो बहुत क्रेजी था। भाई कॉलेज अब स्टूडेंट, कॉलेज दिन आएगा, अब कॉलेज Yes. के एंट्रेंस दूंगा। यस, ये सब करके स्टडीज करके कम्पीट कर रहे हैं, जीत रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, और बहुत ही क्रेजी फिजिक है। और पोजिंग बहुत ही बढ़िया थी। पोजिंग Thank you किसने भैया। सिखाई है वो बताओ? सर ने सिखाई। सर ने सिखाई, बहुत बढ़िया। पूरी मतलब एकदम मैंने routine। इनको बस इंस्टाग्राम पे मैं इनका जिम का फोटोज या वीडियोस देखता था बस, बट पोजिंग मैंने मैंने भाई इनकी सारी वीडियोस देखी है। थैंक्स, किल कर दिया भाई पोजिंग में। और बाकी अभी ये शो से क्या लेके जाओगे, मतलब क्या करना यहाँ पड़ेगा से आपको? बहुत सारा मोटिवेशन, Yes. बहुत सारा एक्सपीरियंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस लेके जाऊंगा, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइमर वो स्माइल स्टेज पे लाना है शिवरिंग। पहली बार स्टेज पे चढ़ रहे हो, कांप रहा था, थोड़ा सा हुआ, बट जब दिखा ना लाइट सामने है, सब सामने है, सब प्रेजेंट करना है, तो लगा कि हाँ अब करते हैं। तो बस वो फ्लो में गया, ब्लैंक माइंड बस चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग जो मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। एंड अगले शो के लिए जब भी मैं कम्पीट करूंगा, आई नो व्हाट माई वीक पॉइंट्स आर, और अगली बार मेरे को इसी ओवरऑल में आना है, जीतना है। तो अभी मुझे ये बताइए, अभी ये ओवरऑल हुआ, तो बाकी के एथलीट्स कैसे लगे आपको? मतलब बाकी के एथलीट्स बहुत कंडीशन थे, उनकी एक एक फाइबर बहुत अच्छी आ रही थी। तो मेन थिंग फिटनेस मॉडल में इस कंडीशनिंग एंड क्लासिक फिजिक में इज़ योर फुलरनेस। तो ये जहाँ मैं खड़ा था क्लासिक वालों के साथ, वो साइज में बहुत बड़े थे, बट यहाँ पे इट वाज माय स्टेज, ये मेरी कोर थी, यस, तो ये मेरा स्टेज था। अब So, अगली बार यही करना है। यस। सो अभी इस बार मतलब आपके क्या वीकनेसेस लगे, मतलब क्या किसको इम्प्रूव करना है आपको? शोल्डर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, शोल्डर्स, आर्म्स और बैक। मतलब बैक इज 50% गुड, बट मैं उसको शोकेस नहीं कर पा रहा था। लाइक डबल बैक बाइसेप में वो प्रेजेंट नहीं हो रही थी, तो वो ठीक करना है। सो अभी एक बार मुझे पोजिंग करके दिखाओ, मतलब पूरे पोजेस प्लीज। हो सारे? पाएगा, हो पाएगा चलो। आपके फ्लो में मस्त। ये लो। यस यस यस, करो। नाइस, वो बढ़िया फ्लो है भाई। वो बैग भी अच्छा है। नाइस।